ایک دن اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دعوت یعنی اسلام کا پرچار کا کام ختم کر کے گھر کی اور جا رہے تھے۔ جب وہ اس راستے سے گزر رہے تھے تو اچانک ان کا دھیان گیا کہ راستے کے ایک طرف ایک فقیر لیٹا ہوا ہے۔ فقیر بہت کمزور اور جین شین حالت میں راستے کے کنارے پڑا تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے اور اسے سلام کیا، لیکن اس فقیر نے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت حیران ہوئے اور اس سے بولے، کیا آپ نہیں جانتے کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس سلام کا جواب دینا ہوتا ہے؟ حضرت علی کی یہ بات سننے کے بعد فقیر بہت ناراض ہوا اور غصے میں حضرت علی سے بولا، کون ہو تم؟ مجھے سلام کر کے کیا ہوگا؟ سلام نہ دے کر اگر کچھ کر سکتے ہو تو مجھے تھوڑا کھانا دے کر مدد کرو۔ آج 5 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، بھوک کی تکلیف سے میں جیرن شیرن حالت میں یہاں پڑا ہوں۔ فقیر کی یہ غصے بھری بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے من میں بھی تھوڑا غصہ آ گیا، لیکن تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کی اس آیت کی یاد آئی۔ سورہ الدحا یعنی تنہائی کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، تم فقیر مسکین سے ڈانٹ کر یا ناراض ہو کر بات نہیں کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا غصہ قابو کیا اور نرم لہجے میں اس فقیر سے بولے، میرے پاس تو ابھی کوئی کھانا نہیں ہے، میں دعوت کا کام ختم کر کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، میرا گھر تھوڑی ہی دور ہے، اگر آپ کھانا پانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ میرے گھر چلیے، میرے گھر جانے پر شاید میں آپ کو کچھ کھانا دے پاؤں گا۔ فقیر بولا، میں بہت کمزور ہوں، بھوک کی تکلیف نے مجھے اتنا پست کر دیا ہے کہ میں اٹھ کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر تک چل کر کیسے جاؤں گا؟ میں آپ کے گھر جا سکتا ہوں اگر آپ مجھے کندھے پر اٹھا کر لے جائیں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فقیر کو کندھے پر اٹھایا اور کندھے پر لے کر گھر کی طرف چلنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت علی گھر پہنچے اور گھر کے آنگن میں اس فقیر کو لٹا دیا، پھر گھر کے دروازے پر جا کر سلام کیا، السلام علیکم یا اہل البیت۔ گھر کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے۔ حضرت فاطمہ بھی بھوک کی تکلیف سے بہت کمزور ہو چکی تھیں، کیونکہ پچھلے 3 دن سے فاطمہ کے چولہے میں بھی کوئی آگ نہیں جلی تھی۔ فاطمہ نے جب اپنے شوہر کی آواز سنی تو وہ کمزور حالت میں دھیرے سے اٹھیں اور اپنے شوہر کے لیے دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ فاطمہ بہت کمزور ہے۔ فاطمہ کی آنکھیں تھوڑی اندر دھنسی ہوئی تھیں، فاطمہ کے چہرے پر پریشانی اور بھوک کے نشان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، فاطمہ کیا ہوا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آج کچھ دن پہلے ہی آپ دعوت کے کام پر چلے گئے تھے، پچھلے 3 دن سے ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں ہے، دونوں بچے بھوکے ہیں، وہ بھوک کی تکلیف سے کرہ رہے ہیں۔ فاطمہ کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں راستے سے ایک بھوکے فقیر کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں اور اسے یہ بھروسہ دیا ہے کہ میرے گھر آنے پر میں اسے کھانا دے پاؤں گا۔ اب تو گھر میں کسی بھی طرح کا کھانا نہیں ہے، میں اس فقیر کو کہاں سے کھانا دوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیر نہیں کی، انہوں نے جا نماز بچھائی اور 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کی۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے دربار میں عرض کیا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مہربان ہے، تو چاہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ ایک فقیر کو میں مہمان بنا کر گھر لے آیا ہوں، اب اگر اسے کھانا نہیں دے پایا تو اس کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ یا رب العالمین، تو میری عزت کی حفاظت کر، میری مدد کر۔ میں اپنی بھوک کی پتنی کے لیے کھانا نہیں چاہتا، میں اپنے بھوک کے بچوں کے لیے کھانا نہیں چاہتا، میں صرف اس فقیر کو دینے کے لیے تیرے دربار میں کھانا چاہتا ہوں۔ تو مہربانی کر کے میری مدد کر، اپنی رحمت سے مجھے بھر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا اللہ رب العالمین کے عرش تک پہنچ گئی۔ ترنت ہی اللہ رب العالمین نے جنت سے کھانے کی ایک پوٹلی بھیجی۔ ایک غیب یعنی ادرشیہ فرشتہ آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جنتی کھانے کی وہ پوٹلی رکھ دی۔ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مناجات یعنی دعا ختم کر کے کھانے کی پوٹلی دیکھی تو وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں شکر ادا کرنے لگے۔ ماں فاطمہ کے گھر میں جنتی کھانے کی پوٹلی تھی، چاروں طرف سے جنتی خوشبو آ رہی تھی۔ پاس کے کمرے سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کھانے کی خوشبو پا کر دوڑتے ہوئے اس کمرے میں آئے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوڑ میں آ کر حضرت علی کو گلے لگا لیا۔
हजरत हसन कहने लगे, अब्बा जान, पिछले 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हसन से कहा, भाई, मेरे लिए माँ से ज्यादा मेरे अब्बा जान अच्छे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से हमने माँ से कितनी बार खाना मांगा, माँ ने एक बार भी हमें थोड़ा सा भी खाना नहीं दिया, और देखो ना अब्बा जान हमारे लिए कितना खाना लाए हैं। हुसैन की ये बात सुनकर माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सभी से कहा, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, बाहर एक फकीर इंतजार कर रहा है और मैंने उसे खाना देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये खाना मांगा है। हजरत अली की ऐसी बात सुनकर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली के दोनों पैर पकड़ लिए और जोर जोर से रोते हुए कहने लगे, अब्बा जान, हम 3 दिन से बहुत भूखे और प्यासे हैं, आप हमें खाना दीजिए, हम खाकर अपनी भूख मिटाएं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़ी आजमाइश का सामना कर रहे थे। एक तरफ उनकी पत्नी और बच्चे भूखे थे, दूसरी तरफ वो फकीर भी भूखा था और वो फकीर को वादा करके घर लाए थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अब ये थोड़ा सा खाना किसे दें? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों तरफ की बात सोचकर पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े थे। तभी हजरत अली को अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान शरीफ में कहा गया ये फरमान याद आया, निश्चित रूप से माल और औलाद फितने का मूल कारण होंगे। पवित्र कुरान की ये आयत याद आते ही हजरत अली ने फैसला किया कि इस खाने का अकेला हकदार फकीर है, इसलिए ये खाना उसी फकीर को देना होगा। हजरत अली ने इस बार बाएं हाथ से हुसैन को एक झटके में दूर हटा दिया, फिर वो फकीर को खाना देने के लिए घर से बाहर निकले। हजरत अली जैसे ही घर से बाहर निकले, उन्होंने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि फकीर खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। जो फकीर सड़क के किनारे कमजोर हालत में पड़ा था, जिसे कंधे पर उठाकर घर लाना पड़ा था, वही फकीर अब खड़ा है और अली की तरफ देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कुछ कहते उससे पहले ही फकीर ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, आप कौन हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आप रास्ते पर जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े थे। आप इतने कमजोर थे कि आपको कंधे पर उठाकर मैं यहाँ लाया हूँ, और अब आप खड़े हो गए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और मैंने आपको सलाम कब किया था जिसका जवाब आप अब दे रहे हैं? तब उस फकीर ने कहा, हे असदुल्लाहिल गालिब हजरत अली, मैं कोई और नहीं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहमत का फरिश्ता हूँ। मैंने आपको परखने के लिए ये सब किया। नबी के सहाबियों में आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक साथ इतनी डिग्रियां हासिल की हैं जो नबी के किसी और सहाबी ने हासिल नहीं की हैं। एक तरफ आप असदुल्लाहिल गालिब यानी काफिरों के लिए शेर हैं, दूसरी तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं इल्म यानी ज्ञान का शहर हूँ और उस शहर में दाखिल होने का दरवाज़ा हजरत अली हैं। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अत्यधिक शक्ति प्रदान की है, आप इस दौर के महान पहलवान हैं। दूसरी तरफ खातूने जन्नत जो जन्नत की औरतों की सरदार होंगी, उनके शौहर आप हैं। दूसरी तरफ हसन हुसैन जो जन्नत के जवानों के सरदार होंगे, उनके पिता आप हैं। दूसरी तरफ अशरतुल मुबश्शरा जो जन्नत की खुशखबरी पाए 10 व्यक्ति हैं के सदस्य आप हैं। जन्नत की खुशखबरी पाए 10 लोगों में आप चौथे नंबर पर हैं। आप एकमात्र सहाबी हैं जिन्हें इतनी सारी खूबियां नसीब हुई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर राजी खुश होकर आपको इन खूबियों से नवाजा है। इस खाने के असली हकदार आपके परिवार के सदस्य हैं, आप उन्हें ये खाना दे दीजिए। एक और दिन की घटना, एक अजीबो गरीब और बिगड़े हुए चेहरे वाला फकीर सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लेकर माँ फातिमा के घर आया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फातिमा के दरवाजे पर जाकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे के पीछे से सलाम का जवाब दिया और पूछा, आप कौन हैं? सलमान फारसी ने कहा, आपके पिता अल्लाह के पैगंबर ने मुझे भेजा है, मेरे साथ एक फकीर है। ये फकीर आपके पिता के पास गया था, लेकिन आपके पिता के पास भीख देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने इस फकीर को आपके घर भेजा है और आपके पिता ने कहा है कि आप इस फकीर की कुछ मदद करें।
हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मेरे घर में तो कुछ खास नहीं है, मैं इस फकीर को क्या देकर मदद करूंगी? हाँ, मेरे पास एक पसंदीदा चादर है, मैं ये चादर आपको देती हूँ। आप इस चादर को यहूदी के घर गिरवी रखकर वहां से जो पैसा मिलेगा वो पैसा इस फकीर को दे दीजिएगा। हजरत सलमान फारसी वो चादर लेकर यहूदी के घर गए और यहूदी से कहा, ये चादर गिरवी रख लो। यहूदी ने चादर हाथ में ली और बहुत हैरान हो गया। यहूदी ने पूछा, ये चादर किसकी है? सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ये चादर हमारे विश्व नबी की बेटी फातिमा की है। यहूदी चादर लेकर घर के अंदर चला गया और काफी देर बाद यहूदी वापस आया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ध्यान दिया कि यहूदी के सिर से टप टप पानी गिर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहूदी ने गुस्ल किया है, यानी स्नान किया है। सलमान फारसी ने उससे पूछा, आप तो बहुत पहले घर के अंदर गए थे, इतनी देर बाद क्यों लौटे? क्या आप चादर गिरवी रखने का पैसा लाए? यहूदी ने कहा, ये लो चादर गिरवी रखने का पैसा और मुझे अभी तुम्हारे नबी के दरबार में ले चलो। मैं कलिमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। मैंने अपनी किताब तौरात में पढ़ा था, आखिरी जमाने के आखिरी पैगंबर जो होंगे उनके घर एक दिन फकीर आएगा और उस फकीर को भीख देने के लिए कुछ नहीं होगा। आखिरी जमाने के आखिरी पैगंबर उस फकीर को अपनी बेटी फातिमा के घर भेजेंगे, लेकिन फातिमा के घर में भी भीख देने जैसा कुछ नहीं होगा। आखिरकार फातिमा अपने जिस्म की एक चादर गिरवी रखकर उस फकीर को भीख देंगी। जब तुमने कहा कि ये चादर विश्व नबी की बेटी फातिमा की है, तभी मुझे अपनी तौरात की भविष्यवाणी की सच्चाई का प्रमाण मिल गया। जिसे तुम नबी मानते हो वो नबी आखिरी जमाने के आखिरी नबी हैं। उनके बारे में तौरात में जितनी भी भविष्यवाणियां थी उन सभी की सच्चाई में पहले ही पा चुका हूँ। मैं सिर्फ इस एक सच्चाई के इंतजार में था। मैं बहुत देर नहीं करना चाहता, मुझे अभी तुम्हारे नबी के दरबार में ले चलो, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मदीना के बागानों में एक यतीम यानी अनाथ लड़के का एक बागान था। उसके बागान से सटे हुए बागान का मालिक अबू लुबाबा नाम का एक व्यक्ति था। वो यतीम लड़का अपने बागान के चारों ओर एक दीवार बनाने गया तो उसने देखा कि पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ सीमा के अंदर आ रहा है। लड़के ने अपने पड़ोसी के पास जाकर समस्या बताई और सीमा पर आ रहे खजूर के पेड़ को खरीदना चाहा ताकि दीवार सीधी बन सके, लेकिन पड़ोसी अबू लुबाबा किसी भी तरह से राजी नहीं हो रहा था। कोई चारा ना देखकर वो यतीम लड़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उन्हें पूरी घटना समझाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लुबाबा को बुलाया। जब वो मस्जिद नबवी आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे अनुरोध किया कि वो खजूर का पेड़ पैसे के बदले में ही सही यतीम लड़के को दे दे, लेकिन अबू लुबाबा हमेशा की तरह राजी नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर उससे कहा, तुम अपने भाई को वो खजूर का पेड़ दे दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत में खजूर के पेड़ का जिम्मेदार हूँगा। ये आश्चर्यजनक था कि अबू लुबाबा इसके बाद भी वो खजूर का पेड़ देने को राजी नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर चुप हो गए। इससे ज्यादा वो उसे और क्या कह सकते थे। वहां मौजूद सहाबियों में हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। वो अबू दहदा के नाम से मशहूर थे। मदीना में उनका एक बहुत खूबसूरत बागान था। लगभग 600 खजूर के पेड़ों के अलावा वहां एक मनोरम घर और एक पानी का कुआं भी था। मदीना के सभी बड़े व्यापारियों के बीच अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बागान बहुत जाना पहचाना था। वो अपने परिवार के साथ वहीं रहते थे। अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, हे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अबू लुबाबा से वो खजूर का पेड़ खरीद कर इस यतीम को दे दूं तो क्या मुझे भी जन्नत में खजूर के पेड़ का मालिक बनाया जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम्हारे लिए जन्नत में खजूर का पेड़ होगा। अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तुरंत अबू लुबाबा से कहा, आप मेरा वो पूरा बागान ले लीजिए और उसके बदले में वो खजूर का पेड़ मुझे दे दीजिए। अबू लुबाबा इस दुनियावी विनिमय पर यकीन नहीं कर पा रहा था। होश में आने पर उसने कहा, हाँ, मैं आपका खजूर के पेड़ों वाला बागान लेता हूँ, बदले में अपना वो खजूर का पेड़ आपको दे देता हूँ। हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी पल वो खजूर का पेड़ यतीम लड़के को तोहफे के तौर पर दे दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर बोले, हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अब मैं जन्नत में एक खजूर के पेड़ का मालिक हो गया?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दहदा के लिए जन्नत में आप कितने विशाल विशाल खजूर के बागान इंतजार कर रहे हैं। वर्णन करता हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि खुश होकर बार बार कही। आखिर में अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकले और अपने अभी अभी बेचे गए बागान में वापस गए। घर के दरवाजे पर आकर उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी, हे उम्मे दहदा, बच्चों को लेकर बागान से बाहर आ जाओ, मैंने दुनिया का ये बागान बेच दिया है। उनकी पत्नी ने पूछा, आपने इसे किसे बेचा है? किसने इसे कितने दाम में खरीदा है? अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैंने इसे जन्नत में खजूर के बागान के बदले में बेच दिया है। उनकी पत्नी ने कहा, अल्लाहु अकबर, हे अबू दहदा, आपने यकीनन बहुत ही फायदेमंद सौदा किया है। हजरत तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक बार हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तभी हमने देखा कि एक ऊंट दौड़ता हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के पास आकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ऊंट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कह रहा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब ऊंट को मुखातिब करके फरमाया, ऊंट, तुम शांत हो जाओ। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारी सच्ची बात तुम्हें फायदा देगी, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला है तो तुम्हें झूठ बोलने की सजा दी जाएगी। यकीनन जो मेरे पास पनाह लेता है अल्लाह ताला भी उसे सुरक्षा देते हैं, और जो मेरे पास पनाह लेता है उसे अल्लाह कभी मोहताज नहीं होने देते। सहाबी तमीम अद्दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट आपको क्या कह रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुझे कह रहा है कि इसका मालिक इसे ज़बह करके इसका गोश्त खाने का फैसला कर चुका है, इसलिए ये अपने मालिक के पास से भाग आया है और यहाँ ये मेरे पास मदद मांग रहा है। तमीम अद्दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इसके बाद हम आपस में बातचीत में मशगूल हो गए। तभी अचानक उसी समय ऊँट का मालिक हमारे पास दौड़ता हुआ आया। जब उस ऊँट ने अपने मालिक को आते देखा तो फिर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर खड़ा हो गया और ठीक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। ऊँट के मालिक ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये ऊँट 3 दिन पहले मेरे पास से भाग गया था और आज मुझे ये आपके पास मिला है। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट ने मेरे पास शिकायत दर्ज कराई है। ये मुझे कह रहा है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पला बड़ा है। जब जबरदस्त गर्मी का समय आता था तुम तब इसकी पीठ पर सवार होकर घास और चरागाहों के इलाकों में जाते थे, और जब सर्दी का समय आता था तब तुम इसकी पीठ पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ सफर करते थे। और अब जब ये बुढ़ापे को पहुंच चुका है तो तुम इसे ज़बह करके इसका गोश्त खाने की योजना बना चुके हो। ऊँट के मालिक ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घटना बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपने बयान किया है, लेकिन सवाल ये है कि ऊँट ने आपको ये सब कैसे बताया? ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बताओ, एक वफादार नेक खादिम को उसकी मालिक की खिदमत के बदले में क्या यही इनाम मिलना चाहिए? ऊँट के मालिक ने कहा, हे रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं इसे ना बेचूंगा ना ज़बह करूंगा, आप जो इजाज़त देंगे मैं वही करूंगा। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट के मालिक से 100 दिरहम के बदले में वो ऊँट खरीद लिया। फिर उन्होंने ऊँट से कहा, है ऊँट, जाओ, अब से तुम आज़ाद हो, अल्लाह ताला का दिया हुआ रिस्क रोज़ी तलाश करो। लेकिन उस ऊँट ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के पास अपना मुंह बढ़ाया और मुंह से आवाज़ निकाली, जिसे सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन आमीन। इसके बाद ऊँट ने दोबारा दुआ की। अल्लाह के रसूल ने फिर कहा, आमीन आमीन। ऊँट ने दोबारा दुआ की। अल्लाह के रसूल ने तीसरी बार कहा, आमीन आमीन। लेकिन जब ऊँट ने चौथी बार एक शब्द कहा तो अल्लाह के रसूल ने आमीन तो कहा ही नहीं, बल्कि भावुक होकर रोने लगे और कहने लगे, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत। यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकलने लगे। सहाबी तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हमने पूछा, है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट आपको क्या कह रहा है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट ने मुझे पहली बार कहा, है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान के जरिए उत्तम बदला अता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने मुझे कहा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी उम्मत के दिल से सारा डर और खौफ ऐसे ही दूर कर दे जैसे आज आपने मेरे दिल से डर को दूर कर दिया। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने दुआ की, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के खून को दुश्मनों के हाथों से ऐसे ही हिफाजत में रखे जैसे आज आपने मेरे खून की हिफाजत की है। इसके बाद उसने फिर कहा, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाह ऐसा ही करे। इसके बाद चौथी बार ऊँट ने कहा, अल्लाह ताला आपकी उम्मत को आपस के झगड़े फसाद, सेना, युद्ध विग्रह जैसी चीजों से हिफाजत में रखे।
یہ بات سن کر میں آمین کہنے والا تھا، لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کی طرف سے نردیش آیا۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اپنی امت کے لیے اللہ سے کئی بار کی ہے، گر گڑا کر دعا کی ہے۔ اے اللہ، میری امت کو آنترک فتنوں، جھگڑے فساد سے بچا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میری پہلی 3 دعائیں قبول کی، پر آخری 2 قبول نہیں کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ کی طرف سے خبر دی ہے کہ ہے رسول، آپ کی امت میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ آپس میں چھوٹی موٹی کمیوں کو لے کر ایک دوسرے کو فتویٰ بازی کریں گے، فتنہ بازی کریں گے، جھگڑا جھنجٹ کریں گے، ان میں لپت ہوں گے، اور یہ سب کر کے یہ برباد ہوں گے۔ جب باہری دشمن ان پر حملہ کرے گا تب وہ آنترک کلہ میں ویست ہوں گے۔ یہ سب کچھ جو ہوگا وہ سب تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اس لیے اس معاملے میں اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مانو جاتی کے لیے ہی نہیں، بلکہ وہ سمگر جگت، انسان، جن اور سبھی پرانیوں کے لیے رحمت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندھیرے میں روشنی پھیلانے کے لیے بھیجا۔ ان کی شکشا اور آدرش آج بھی ہمیں شانتی اور سچائی کی اور راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ان کی نافرمانی اور سبھی طرح کے گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ پریے درشک، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، کمنٹ باکس میں آپ آمین لکھ کر ضرور جائیے گا۔ تو یہ تھی آج کی گھٹنا۔ ایسی ویڈیو ہمارے چینل پہ آتی رہے گی تو ہمارے ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔